वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशंस दिए थे। उसी एक्सरसाइज से सम मोर सॉल्यूशंस। इट मीन हियर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is given that there is a circle of center O. Here x y and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB which contact the circle at C and A is joined to O and O to Q, P and P are joined. Here we have to prove angle AOB is 90 degree. Here to prove it, a salt construction join O to C. इट मीन O को हम C से ज्वाइन कर। हेयर प्रूफ है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A the length of tangent AB will be equal to length of tangent AC and so the two tangents are equal. So in the triangle, angle AOP will be equal to angle AOC, and similarly tangent BQ will be equal to BC. Here BQ will be equal to BC. So angle BOQ will be equal to angle BOC. And on a straight line, the sum of angles is 180. So here angle AOP plus angle AOC plus angle BOC plus angle BOQ is 180 degree. So here AOP equal to AOC. So here we can write for AOP AOC plus AOC and plus BOC up again for BOQ. Here we can write angle BOC equal to 180. So 2 angle AOC plus 2 angle BOC equal to 180 degree. Here 2 can be taken as common. In bracket angle AOC plus angle BOC is equal to 180. So to sum of AOC and BOC and BOC will be equal to
angle AOB equal to 180. So angle AOB is 180 by 2. So it is 90 degree, and so it is proved. यानी यहाँ AOB 90 का. Now next, see question number 10. Here question number 10a. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points contact at the center. It means if a circle of center O from an external point P, the two tangents are drawn PA and B. A and B are joined to O. Here we have to prove that angle AOB plus angle APB equal to 180. यानी इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा. So here see, we know that the angle between tangent and radius is 90 degree. Here we know that angle between radius and tangent A 90 degree. So here angle A will be 90 degree, and also angle B equal to 90 degree. And AOBP is a quadrilateral, and sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. So here we can write angle A plus angle AOB plus angle B plus angle APB equal to 360 degree. Here angle A already 90 plus angle AOB plus angle B already 90 and plus angle APB equal to 360 degree. So here angle AOB plus angle APB equal to 360 minus 90 and 90, it means 180. So AOB plus angle APB equal to 180 degree, and so it is proved. Now see question number 11. To prove that parallelogram circumscribing ए सर्कल इज ए रोम्बस. यानी अगर किसी सर्कल को कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करे तो एक रोम्बस होगा. लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सच circumscribe a circle, and here we have to prove that ABCD is a rhombus. Here ABCD is a parallelogram. So AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, and also AD equal to BC and AB equal to DC, and here we have to prove ABCD is a parallelogram. तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट्स जो ड्रा किए जाते हैं आपस में इक्वल मेजर के होते हैं. सो हियर AS is equal to AP, AS equal to AP, and BQ equal to BP, and CQ equal to CR, and DS equal to DR.
इस तरह से यहाँ 4 इक्वेशंस हुए। नाउ इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। हियर as प्लस bq प्लस c हियर इट इज cq प्लस ds। नाउ हियर ap राइट साइड को ऐड कर दिए, ap प्लस bp cr प्लस dr। हियर as प्लस ds एक साथ कर ले, as प्लस ds एंड cq प्लस bq प्लस cq। तो यहाँ और यहाँ राइट साइड में ap प्लस bp cr प्लस dr। तो लेफ्ट साइड में यहाँ देखें as और ds या मिलके ab हो गए, bq और cq मिलके bc हो गए। यहाँ ap और bp मिलके ab हो गया, cr और dr मिलके cr और dr मिलके पूरा cd हो गया। Here already given that AD equal to BC और AB equal to DC। तो यहाँ जो है यहाँ AD प्लस BC है, तो AD चूंकि AD BC के इक्वल है तो AD के प्लेस पे हम BC लिख दिए, BC एंड BC 2BC हो गया। राइट साइड में AB प्लस DC है तो DC चूंकि AB के इक्वल है तो DC के प्लेस पे AB लिख दिए, AB प्लस AB 2AB 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी BC इक्वल टू AB। तो यहाँ चूंकि BC AB के इक्वल है और AB DC के इक्वल है और फिर यह आपका BC AD के इक्वल है, इट मीन 4 साइड्स इक्वल हो गए, यानी द क्वाड्रिलेटरल विच 4 साइड्स आर इक्वल इज ए रोम्बस। यानी इस तरह से या क्वेश्चन नंबर 11 जो था कि टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस प्रूव हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 a triangle ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm। The radius is given 4 cm and such that the segment BD and DC into which BC divided by the point of contact D are length 8 cm and 6 cm, 8 cm and it is 6 cm. Here we have to find side AB and AC. So let E and F. Let AF equal to AE equal to X. So here AC equal to CD जो है 6 है इसलिए CF भी 6 हो जाएगा और BD 8 है इसलिए BE भी 8 हो जाएगा। यानी AC हो गया X प्लस 6 और AB हो गया x प्लस 8, BC हुआ आपका 6 प्लस 8 यानी 14। इस तरह से सबसे पहले हमें ट्राइंगल ACB का एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम S फाइंड करें। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, इट इज x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 बाई 2, इट मीन 2x प्लस 28 बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 बाई 2, x कैंसिल हुआ, सो इट इज x प्लस 14, यानी s का वैल्यू जो है x प्लस 14 हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और ACB इक्वल टू according to Heron formula S into S minus A into S minus B into S minus C। Here S के प्लेस पे we can write x plus 14, here x plus 14 minus A, it means x plus 6 and in second bracket
x plus 14 into minus bx plus 8, and the third number x plus 14 minus c यानी 14. Now here under root x plus 14 into x plus 14 minus x minus 6, second bracket x plus 14 minus x minus 8, and here x plus 14 minus 14. Now it can be written x plus 14 into x to x कैंसिल 14 माइनस 6 यानी 8 हो गया. यहाँ भी x to x कैंसिल 14 माइनस 8 यानी 6 हुआ, और यहाँ 14 to 14 कैंसिल यानी x हुआ. और here we can write x plus 14, 8 को फैक्टराइज कर दें 2 into 2 into 3, और 6 को फैक्टराइज कर दें 3 into 2. 2 into 2 into 2, 8 के लिए 2 2 जार 4 2 जार 8, और 6 के लिए 3 into 2, और यह हो गया आपका x. अब देखें, चूंकि ACB का ACB जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यदि हम O को A, B और C से ज्वाइन कर दें तो इस ACB में 3 ट्राइंगल हो गए, और यह ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ACB, सॉरी ट्राइंगल AOB AOC प्लस एरिया ट्राइंगल COB प्लस एरिया ट्राइंगल AOB. यानी इस ट्राइंगल ACB का जो एरिया है वह इस 3 ट्राइंगल AOC COB और AOB के एरिया के सम के इक्वल होगा. अब चूंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट लिख सकते हैं. सो हियर 1/2, अब बेस ले लिया हमने AC, और इस पे परपेंडिकुलर हाइट हो गया OF, प्लस COB में बेस ले लिए पूरा CB, और परपेंडिकुलर हाइट हो गया OD, और फिर 1/2 AOB का बेस ले लिया AB, और परपेंडिकुलर हाइट हो गया OE. नाउ अब यहाँ OF OD और OE सब इक्वल है टू 4CM, यानी 1/2 AC, तो यहाँ 1/2 AC इंटू OF, तो OF हो गया 4, प्लस 1/2 CB और OD आल्सो 4, एंड प्लस 1/2 AB और OE आल्सो 4. अब देखें तो 2 से यह कैंसिल हो गया 2 जार, 2 से अभी कैंसिल हो गया 2 जार, 2 से अभी कैंसिल हो गया 2 जार. नाउ 2 इंटू AC, तो AC या 2 हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं AC प्लस CB प्लस AB. नाउ 2 इंटू AC, तो AC के प्लेस पे हम लिख सकते हैं AC यानी x प्लस 6, CB यानी 14 और AB यानी x प्लस 8 इक्वल टू. अब देखें यहाँ पे, यहाँ x प्लस 14 है, ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट x प्लस 14, एंड यार 2 and 2 यह दोनों पेयर में है, इट मीन 2 into 2 कॉमन हो, मतलब है स्क्वायर रूट निकल गया, पेयर में है, और यह हो गया आपका 3x.
रूट में भी है, यानी यहाँ x प्लस 14, चूंकि 8 को फैक्टराइज किया है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को फैक्टराइज किया है 3 इंटू 2, तो 2 का पेयर हो गया, इस 2 का भी इससे पेयर हो गया, तो पेयर वाले नंबर आउट हो गए, पेयर में से 1 और अंदर बच गया 3 इंटू एक्स। अब यहाँ देखें 2, अब x एंड x 2x, 8 और 6 14 और 14 28 equal to 2 2 jar 4 and here x plus 14 into 3x। अगेन इन दोनों में से भी 2 आउट कर ले तो 2 इंटू 2 हो गया, इन ब्रैकेट x प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू हो गया 3x। यहाँ 4 से या 2 2 जार 4 कैंसिल हो गया, यानी बचा x प्लस 14 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x। अब देखते हैं, अब इसे सोल्व करने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, यानी टू टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा x प्लस 14 स्क्वायर और इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 3x, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। नाउ अब यहाँ x प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू, अब रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, यानी x प्लस 14 इंटू हो गया 3x और एक्स स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 प्लस 14 2 जार 28x इक्वल टू 3x इंटू एक्स, इट मीन 3x स्क्वायर and 3x into 14, it means 14 or here we can write 3x square, x square को राइट में ले लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x 28 को राइट में ले लें माइनस 28x 196 को राइट में ले लें 196 इक्वल टू 0 और here we can write 3x square minus x square, here we can be write as 2x square minus 2x square at 42 minus 28, यानी हो गया 14x minus 196 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर देना है, तो हियर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 7 के प्लेस पे 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 98 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 equal to 0. Here x can be taken as common, so in bracket x plus 40 minus 7 is common, so x minus minus plus 7 से 98 में डिवाइड कर देंगे 14 इक्वल टू 0 और x plus 14 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 और नाउ इफ x plus 14 equal to 0 then x equal to minus 14, which is not valid, and if x minus 7 equal to 0 then x equal to 7, यानी x का वैल्यू 7 हो गया, सो AB AC का वैल्यू फाइंड करना है, तो AC है आपका x प्लस 6, तो
x प्लस एक्स यानी 7 और 6 यह हो गया 13 cm। और ए बी का वैल्यू फाइंड करना है x प्लस 8 तो x हो गया 7 और प्लस 8 यानी हो गया 15 cm। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट।